Today is the day 5. The chakra is the throat and located in your area of the throat. It's called the Visuddhi chakra. The color is the light blue. It's not a sky blue, it's not a dark blue, it's a light blue color. And reflection in our body is the confidence, commitment and command से. ठीक है, आपके बॉडी को एक प्रॉपर फ्लो पे लेके जाएगा जहाँ पे थायराइड जहाँ जिसका डिस्टर्ब है, जो कंफ्यूजन है, जो सतत कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, उन लोगों के लिए थ्रोट को एक्टिवेशन है. आसना बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है. हम उसको डेली फॉलो कर सकते हैं. एक्चुअली हम करते ही है लेकिन आज हम थ्रोट पे ज़्यादा एक्टिवेट करेंगे. दिस इज सम काइंड ऑफ द ब्रीदिंग टेक्निक इज कॉल्ड हमिंग. हम हमिंग पे भी फोकस करेंगे. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द म्यूजिक एंड लेट्स गोइंग विद द थ्रोट एक्टिवेशन. Stretch, lift, stretch, go down, stretch. 20 टाइम करेंगे. Go down, stretch, lift, upper, stretch, go down, stretch, upper side, stretch, left side, go down, go down.
tap, stretch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good job. Give your body a massage. Head up. Stretch. And release. Stretch. And release. Go down. Stretch. Hold it. Stretch. Go down. Stretch. Good job. Stretch. The last time. Up. Stretch. Hold it. Stretch. Go down. Stretch. Sit down. Hold it. Stretch. Sit back. Hold it. Stretch. Head up. Sit down. Upper side. Stretch. Sit down. Go down. Upper side. The last time. Go down. Hold. Stretch. And release. Put your upper stretch. Sit down. Go down. Stretch. The last time. Stretch. Go down. And release. एक हाथ आपका सर के ऊपर है स्ट्रेच सिट अप स्ट्रेच गो बैक स्ट्रेच अपोज स्ट्रेच सिट अप स्ट्रेच लास्ट टाइम स्ट्रेच थर्ड टाइम स्ट्रेच and release go down stretch and release last time stretch and release sit up upon the head let's side feel your vision and release the last time sit up and release तो हाथ को लॉक करें
down, down rotation. Lift up, upward stretch. Go down, down rotation. Lift your body up, upward stretch. Go down, down rotation. Lift your body up, upward stretch. पीछे की तरफ leg like that. Head up, stretch. Lift up, go down. Lift up, go down. Stretch. Lift up. चलो continue. Left side. 1, 2, stretch. 4. Okay. 5. Stretch. Lift up. 9. 10. Relax. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Shoulder down, stretch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Upward stretch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stretch. Lift. Come in. Stretch. Lift up. Upward stretch. Go down. Go down. Stretch. Lift up. Stretch. Upward stretch. Stretch. Lift up. Upward stretch. Go down. Stretch. Head down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lift up. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stretch up. Head up. Head down. Lift your body up. Go down. Lift up. Go down. And release. Go down. And release. लॉक करो हाथ. आगे आइए. थोड़ा टाइट. हाथ को पीछे खींचिए. Go forward. Head up. Come in. Head down. Lift your body up. Go back. Release. Go down. Stretch. Head up. Come back. And release. The last time. Stretch. And release. दोनों हाथ को ऊपर करें. Head down. Lift your body up. Go forward. Take it in. Down. Stretch. The last time. And relief. चलो आप जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे दोनों पैर को स्ट्रेट कर दें. यस यू एंजॉय. जिन लोगों को सर्वाइकल है और थायराइड है दोनों में एक ही चक्रा काम करता है आगे पीछे. ठीक है. जहाँ पे अपर साइड पे थ्रोट है तो बैक साइड पे सर्वाइकल है. तो एक्सरसाइज है दोनों में इक्वल हेल्प करता है. चलो दोनों पैर को स्ट्रेट करते हैं. लोअर बॉडी का यहाँ पे इतना इफेक्ट नहीं है लेकिन हम लोअर बॉडी का यूज करके अपर बॉडी को थ्रोट को एक्टिवेट करेंगे. चलो दोनों हाथ पीछे. आपको थ्रोट को सिर्फ देखना है. जिन लोगों को स्पेसिफिक थायराइड इश्यू है जब भी मैं बोलूँ कि नेक स्ट्रेच करें तो लिफ्ट करना है. ये मसल्स आपका टाइट दिखना चाहिए. ठीक है. लिफ्ट करो. आपका जो को लिफ्ट करोगे तो ये थायराइड में अप एंड डाउन होगा. इन जब भी अप एंड डाउन होता है तो कंप्रेशन रिलीव करता है. कंप्रेशन रिलीव करता है तो प्रॉपर थायराइड सिक्रेशन होगा. ठीक है. इतना दिखेगा नहीं आपको वीडियो में लेकिन whenever I said कि you have to stretch your neck, you have to lift. ठीक है. यहाँ पे आपको एक ग्रूव दिखना चाहिए और ये मसल्स आपके टाइट है. चलो दोनों हाथ पीछे स्ट्रेच करें. पैर को लॉक कर दो. ओवरलैपिंग करें थंब से एंड हेड अप and stretch your neck upward side. Go forward. Lift your body up. Neck को stretch करेंगे. Go down. Stretch. Lift your body up. Stretch. Go down. Lift your body up. Stretch.
The last time, go down, stretch, lift your and relieve and relax. चलो दोनों पेट को ओपन करते, राइट हैंड पीछे लिफ्ट करें बॉडी को, नेक स्ट्रेच एंड रिलीव, लेफ्ट हैंड पीछे लिफ्ट करो बॉडी को एंड रिलीव, चेंज योर हैंड, चेंज योर पोस्चर, lift your body and relieve. One more time, lift up and relax. The last time, lift your body and relieve on the opposite side and stretch and relax. चलो दोनों पैर को बेंड करके हिप को थोड़ा आगे लाइए। यहाँ पे सिटिंग आसना बहुत ही कम है, पैर को पाए आसन, दोनों हाथ आपके पीछे, फिंगर अपनी तरफ है, योर जस्ट स्ट्रेच, नेक को स्ट्रेच करें, लिफ्ट करें अपर, ब्रीथ आउट एंड रेडी। जिसको सर्वाइव करने में क्या करेंगे, धीरे से नेक लिफ्ट करें, अप करें, स्ट्रेच करें एंड पीछे लेके जाए ताकि आपका सर्वाइकल रिलैक्स, कम बैक एंड रिलीव। द लास्ट टाइम स्ट्रेच, कम एंड रिलैक्स। चलिए यहाँ पे पलाटी लगा दें, मेरे साथ करना है, ठीक है। इसे एडवांस आसना, बट अगर हम प्रॉपर टेक्निक से पोस्चर मेंटेन करेंगे तो आराम से होगा। अब पलाटी लगा दो, एल्बो डाउन, ठीक है। फोकस करो कि आपका बेली रिलैक्स रहे, हिप रिलैक्स रहे, मेरे साथ करो, सबसे होगा, ठीक है। अगर हम पलाटी नहीं लगा सकते तो उर्द कर थोड़ा आगे लेके जाइए, अदरवाइज क्रॉस करके रखिए, एल्बो पे आगे, धीरे से हेड, यस, धीरे धीरे आपका एल्बो को रिलैक्स करते एंड स्ट्रेच। कोशिश करो कि आपका सर है योगा मैट तक जाए, दोनों हाथ को रिलैक्स कर दो, क्योंकि आपका सर योगा मैट के ऊपर गया, आप एल्बो को रिलैक्स करके छोड़ो, हेड ऊपर देखो, छत को, टेक अ डीप ब्रीथ, ब्रीथ आउट एंड रिलीज। दोनों हाथ का यूज करेंगे, हाथ को उठाइए, अपने नेक के पास रखिए, ऊर्ध्व रखना ऊपर की तरफ, सर को उठा के वापस लिफ्ट करो, दोनों हाथ को ऊपर, स्ट्रेच, होल्ड करें, नेक के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, इट्स ओनली फ्रंट साइड प्रेशर, ब्रीथ आउट एंड रिलीज। वापस हेड को रिलैक्स करें, हेड रिलैक्स, आप पलाटी लगा के ही बैठे, ठीक है। दोनों हाथ आपकी योगा मैट के ऊपर है, हेड को अप करो, सिर्फ लिफ्ट अप डाउन, ऊपर की तरफ देखो, वापस नीचे, स्ट्रेच एंड रिलैक्स। चलो पलाटी को छोड़ो। ये आसना देखने में बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन सिंपल पोस्चर से आप कर पाओगे। दोनों हाथ आपके नेक के पास है, यू हैव टू जस्ट स्ट्रेच एंड आपका चीन है वो नेक से करीब है, ठीक है, यहाँ पे प्रेस करके रखना है, होल्ड इट एंड स्ट्रेच, कम बैक एंड रिलीज, होल्ड इट एंड स्ट्रेच, come back and release. One more time, lift up, come back and release. The last time, lift up, come back and release. चलो बहुत ही सिंपल आसन, हलासन, मेरे साथ करना है, ठीक है। यहाँ पे सारे एडवांस आसन जैसे जैसे चक्र अपर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मसल्स नहीं रहते, तो यहाँ पे we have to activation some kind of the compression. राइट लेग को लिफ्ट करें, लेफ्ट को लिफ्ट करें, मेरे साथ करना है, ठीक है। अगर आप दोनों पैर नहीं कर सकते, आप पकड़ के करें। प्रेशर यहाँ पे थ्रोट पे क्रिएट करना जरूरी है। आप प्रॉपर हलासन करें ना करें उसका कोई मकसद नहीं है, आपका थ्रोट है वो कंप्रेस, चीन नीचे की तरफ, दोनों हाथ आपकी हिप के पास, धीरे से पैर को पीछे लेके जाए, कंप्लीट बेंड, गो बैक, धीरे आइए, रिलीव, स्ट्रेच, कम बैक, गॉट इट। चलो दोबारा करें, आपसे नहीं होगा तो भी कोशिश करना है, ठीक है। आधा करे, कम करे, नेक पे कंप्रेशन जरूरी है। योगा मैट को पकड़ लो, आपको कंफर्ट रहेगा, राइट लेग लिफ्ट, लेफ्ट लेग लिफ्ट, दोनों पैर को बेंड करो, लिफ्ट करो बॉडी को पीछे, स्ट्रेच, कम बैक, धीरे वापस आइए, लिफ्ट करें, बेंड करें दोनों पैर को एंड चलो उसका अपोजिट आसन एक है कि हम वही पोस्चर में वही थायराइड को कंप्रेस करेंगे, दोनों हाथ से नेक को लिफ्ट, पैर को लिफ्ट करें, नेक को उठाओ, इट्स नॉट एग्जैक्ट पवन मुक्तासन, बट यू हैव टू शोल्डर अप, स्ट्रेच योर नेक, कम बैक, रिलीज,
Lift your neck backward side. Come back. Continue. The last time, neck backward side. Stretch. Come back. And relax. And release. दोनों पैर को नीचे लाइए एंड दोनों हाथ ऊपर की तरफ है. राइट लेग को लिफ्ट करें अपर साइड. स्ट्रेच करें. कम बैक एंड रिलीज. लेफ्ट को लिफ्ट करें. स्ट्रेच. कम बैक एंड रिलैक्स. चलिए दोनों पैर को स्ट्रेच करते. नाभि इन. पेट को दबाओ अंदर की तरफ. आपके दोनों हाथ आपकी नेक के आसपास है. ठीक है. लिफ्ट ये नहीं करना, लिफ्ट नेक को करना है. आप एक बार देख लो अगर आपको कंफर्ट नहीं लगता तो. नेक को लिफ्ट करें एंड स्ट्रेच. वापस दोनों हाथ आपकी हिप के पास. ठीक है. चलो मैं आपको वापस दिखाती हूँ. लिफ्ट करें एंड गॉट इट. आपका सर उठाना बहुत ही डिफिकल्ट है. पूरे बॉडी से ओनली 10% वेट आपका हेड का रहता है, लेकिन उसको लिफ्ट करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है. मेरे साथ करना है. जिसको सर्वाइकल है टेक्निक फॉलो करना है. नेक पे कंप्रेशन नहीं आना चाहिए. वी आर एक्टिवेशन ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द थ्रोट चक्रा, एक्टिवेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड. दोनों हाथ को लिफ्ट करें. आप साइड की तरफ लेके जाइए. पीछे अपनी तरफ. ठीक है. एल्बो है वो आपकी तरफ साइड रहना चाहिए. फिंगर है अपोजिट साइड. हाथ के ऊपर प्रेशर दे. नेक को लिफ्ट करें. स्ट्रेच करें. ये आपका क्रोन है वो पीछे की तरफ जाना चाहिए. होल्ड इट. दोनों हाथ आगे. सांस भरें अंदर. इन. ब्रीथ आउट एंड रिलीज. वापस हाथ को उठाइए. स्काई की तरफ लेके आइए. हाथ के ऊपर प्रेशर एंड हेड को रिलैक्स एंड रिलीज. चलो दोनों हाथ आपके नेक के नीचे. स्ट्रेच करें. पैर को बेंड कर दो. आपका बैक रिलैक्स रहना चाहिए एंड लिफ्ट योर बॉडी अप. ब्रीथ आउट एंड रिलीज. यहाँ पे नेक को लिफ्ट करना है. चेस्ट को नहीं. लिफ्ट अप. सर को दबाओ. चिन टाइट. ब्रीथ आउट एंड रिलीज. वन मोर टाइम. टेक a deep breath. Breathe out and release and relax. The last time. Stretch. Breathe out and relax. चलो चक्रासन करना है. एक बार स्ट्रेचिंग करें. लिफ्ट अप डाउन. लिफ्ट अप डाउन. आपका नेक है ना उसको दबा के रखना है. जिसको थायराइड है वो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट. ब्रीथ इन लुक. तो वहां पे थायराइड का एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाएगा. आउट. लास्ट टाइम. और पैर को खींचिए. दोनों हाथ के ऊपर फोकस एंड लिफ्ट अप. होल्ड करें. पेट को दबाओ. इन आउट. इन आउट. इन आउट. इन आउट. कम एंड रिलैक्स. दोनों पैर को राइट साइड. स्ट्रेच. कन्वर्ट ऑन लेफ्ट. स्ट्रेच. Go on the right. Stretch. Convert on the left. Stretch and release and relax. चलो चक्रासन करते हैं. जिससे होगा वो करेगा, नहीं होगा वो कोशिश करेगा. इट्स मोर एडवांस फेस बट इट्स मोर इफेक्टिव ऑन द हार्ट, थ्रोट एंड थ्रोट. तीनों चक्र पे एक ही आसना सबसे ज्यादा काम करता है. दोनों हाथ आपके नेक के आसपास रखें. एग्जैक्ट शोल्डर के ऊपर. ठीक है. लिफ्ट करें बॉडी को अपर साइड. पहले आपके हेड के ऊपर आए एंड देन आफ्टर यू टू लिफ्ट कंप्लीट. स्ट्रेच. जिससे होगा वो करेगा, नहीं होगा वो रिलीव करे. कम बैक. वापस नेक पे आइए. स्ट्रेच. थ्रोट डाउन एंड रिलीव एंड टेक अ डीप ब्रीथ. सांस करें अंदर. हेड को रिलैक्स करें. बैक को कम बैक. द लास्ट टाइम. स्ट्रेच. कम डाउन. रिलैक्स. चलो टर्न कर दो बॉडी को एब्डोमेन के ऊपर. आपका पीछे वाला एरिया रिलैक्स रहेगा. सिर्फ आगे वाला एरिया. ठीक है. जिसको बैक पेन है उसको एक बहुत ही इफेक्टिव है. आसना हम थ्रोट और सर्वाइकल का करते हैं लेकिन स्पाइन एलाइट होता है. पीछे पैर को लॉक करें. ओवरलैपिंग.
ठीक है, लॉक किया. नाउ यू हैव टू जस्ट स्ट्रेच योर हेड डाउन, कंप्लीट नीचे जाओ, पेट को रिलैक्स करें. टेक अ डीप ब्रीथ एंड लिफ्ट योर बॉडी अप. Breathe out and release. Breathe in, head up. Breathe out and release. Breathe in, head up. Breathe out and release. The last time, breathe in, head up. Breathe out and release. And relax. दोनों हाथ आपके योगा मैट के बाहर एंड स्ट्रेच करें. योगा मैट से बाहर है, योगा मैट को धक्का लगाओ, बॉडी को खींचो अंदर, पेट को अंदर की तरफ. नाउ यू हैव टू लिफ्ट योर हेड अप. या स्ट्रेच, टेक अ डीप ब्रीथ, उठाओ ऊपर, लिफ्ट करो, और टाइट एंड डाउन नीचे. दोनों हाथ आपके एक दूसरे से लेफ्ट है, ठीक है, ऐसे लॉक करके रखना है आपके चेस्ट के पास. एंड यू हैव टू जस्ट स्ट्रेच, हेड डाउन, कम बैक एंड रिलीज. लिफ्ट योर बॉडी अप, stretch it, come back and release. Lift your body up, stretch, come back and release. The last time, lift your body up, stretch, come back and release. And relax. दोनों हाथ आपके चेस्ट के पास, पेट पीछे पेट को टाइट करें, लिफ्ट करेंगे, भुजंग करके वापस आएंगे. लिफ्ट योर बॉडी अप, head, come back and go back, stretch, relax your back muscle, tight and चलो, बहुत ही सिंपल कैट एंड कैमल पोज इज द बेस्ट फॉर थ्रोट एंड सर्वाइकल बोथ. फ्लॉप करें बॉडी को, एंकल रिलैक्स, स्ट्रेच करें अपर साइड, हेड अप, कम बैक, हेड डाउन, लिफ्ट योर बॉडी अप, स्ट्रेच, हेड अप, कम बैक, ब्रीथ आउट, टेक अ डीप ब्रीथ, लिफ्ट योर बॉडी अप, ब्रीथ आउट, लिफ्ट योर बॉडी अप, head up, stretch, breathe out and release. One more time, lift up, stretch, come back and release. Lift up, stretch, head, come back and release. One more time, lift your body up, stretch, come back and relax. Simple cat and camel कैसे होता है? Head down and stretch, go down and stretch. यहाँ पे क्या है? You have to lift your body up, neck को stretch करें, come back and lift your body up, stretch, come back and the last time, lift up, stretch and relax. चलो आगे आ जाइए. Yes. नी के ऊपर फोकस है, लिफ्ट करना है. प्रॉपर वज्रासन में बैठे, स्ट्रेच, दोनों पैर के बीच में जगह बना ली. आपका लेफ्ट हैंड पीछे, हम लिफ्ट करेंगे बॉडी को. ठीक है, एक बार देखिए कैसे रखेंगे, आपके सामने स्ट्रेच. ठीक है, जैसे ही आपका बॉडी आपके सामने आएगा, आपका नेक ऑटोमेटिक लिफ्ट होगा. स्ट्रेच, लिफ्ट करो ऊपर, ब्रीथ आउट, कम बैक एंड नेक्स्ट गो ऑन अपोजिट साइड. फिंगर अपनी तरफ है, लिफ्ट योर बॉडी, कम बैक and release. One more time, lift your body up. Go back and release. The last time, lift your body up. Come back and relax. ये हमने बेसिक पोज किया. ठीक है, वही पोस्चर में हिप को लिफ्ट करना है. मेरे साथ करें, पीछे जाए, आपका हाथ पीछे है. You have to just lift your back up and stretch. Head up. Breathe out and release. जाओ पीछे, लिफ्ट करो हेड को ऊपर की तरफ, स्ट्रेच, कम बैक एंड रिलीज. वन मोर टाइम, लिफ्ट योर बॉडी एंड रिलीज. द लास्ट टाइम, स्ट्रेच, लिफ्ट अप, स्ट्रेच एंड रिलीज. चलो, दोनों हाथ आपके हील के ऊपर. ठीक है, लिफ्ट करें बॉडी को, breathe out and release. One more time, lift your body up, breathe out and release. The last time, stretch,
breathe out and relax। चलो नीचे ऊपर आ जाइए। जिन लोगों को नी में पेन है वो वहां पे पिलो रखना, ठीक है। राइट लेग को पीछे लेफ्ट आगे। यस, क्वेश्चन ले लो। एंकल रिलैक्स, स्ट्रेच करें बॉडी को पीछे की तरफ। हेड, ब्रीद आउट एंड रिलीफ। चेंज करें लेग को, राइट आगे लेफ्ट पीछे, ठीक है। जब भी हम ओपन करते हैं तो हिप का एरिया स्ट्रेच होता है। जैसे हिप स्ट्रेच होगा आपका बॉडी रिलैक्स हो जाएगा। एंड रिलीफ एंड रिलैक्स। चलो अर्ध उल्टा चक्रासन करते हैं। लेफ्ट साइड बॉडी को टर्न करें, स्ट्रेच, लिफ्ट करें अपर साइड, हेड डाउन, कम बैक अपर साइड एंड रिलैक्स। अपोजिट डायरेक्शन में चलिए, स्ट्रेच, लिफ्ट योर बॉडी, कम बैक एंड रिलैक्स। पीछे जाने में कोई टेंशन नहीं है, आप सीधा पीछे जा सकते हैं। वापस आने में फोकस करना है बैक और स्पाइन दोनों, ठीक है। जाओ पीछे, स्ट्रेच, यहाँ पे फोकस करो, एंकल रिलैक्स करें, स्ट्रेच, लिफ्ट करो बॉडी को, स्ट्रेच, ब्रीद आउट। हाथ को पहले लाइए, बैक को धक्का लगाए एंड देन लिफ्ट योर बॉडी अप। ठीक, टेक्निक फॉलो करना है, अदरवाइज बैक में प्रेशर आएगा। जाओ पीछे, लेफ्ट साइड, लिफ्ट करो बॉडी को, स्ट्रेच, कम बैक एंड रिलीव एंड रिलैक्स। दोनों पेट को टाइट, गो डाउन, स्ट्रेच, दबाओ पेट को अंदर, लिफ्ट करो बॉडी को ऊपर साइड, स्ट्रेच, कम बैक एंड रिलीव। वन मोर टाइम, लिफ्ट योर बॉडी अप, गो डाउन एंड रिलैक्स। द लास्ट टाइम, स्ट्रेच। चलो दोनों हाथ पीछे लॉक करें, चाहे कुछ भी करें या ना करें, ऊर्ध्व वज्रासन में बैठना है। बॉडी को लिफ्ट करना है, हेड अप। इस थ्रोट को बहुत ही सबसे ज्यादा रिलैक्स रखता है थायराइड की। Breathe out and release. One more time and stretch. Lift your body. Breathe out and release. The last time, stretch your body out. Breathe out and relax. चलो दोनों हाथ आपके योगा मैट के ऊपर लिफ्ट करो बॉडी को ऊपर साइड, हेड डाउन, मैं आपको सामने से दिखाती हूँ। इस लाइन पोज, ठीक है। आपको टंग बाहर निकालना है, थ्रोट को आमने सामने रख के स्ट्रेच। यहाँ पे उठ के रखना है, ठीक है। यू हैव टू जस्ट टेक डीप ब्रीथ। सांस को रहने दो। Breathe out. The last time. In. Breathe out. And release. चलो टंग बाहर निकाले। And release. आवाज करके निकालना है, जैसे गर्जना करता है कि out. And release. The last time. Stretch. And relax। दोनों ने साथ में रिलैक्स करिए, एक ब्रीथ एंड लिफ्ट योर बॉडी। स्टार्ट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and स्ट्रेट डाउन एंड रिलैक्स। चलो खड़े हो जाइए। थ्रोट का आसना थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा एडवांस है। जैसे थायराइड भी थोड़ा डिफिकल्ट रहता है सारे डिजीज से रिवर्स करने में, ठीक है। थायराइड रिवर्सल इज डिफिकल्ट बिकॉज इट्स लोकेटेड इन योर मिडल ऑफ योर ग्लैंड, ठीक है। चलो कोई लीव नहीं करेगा सबसे।
Mabasco, Manami, ang mga remix mas malaking mix club.
boys dance.
and then breathe out. हमिंग करना है, ठीक है। हमिंग का मतलब है अंदर ही अंदर सांस लेना है, अंदर ही अंदर छोड़ना है, जैसे ब्राह्मणी करते। ब्रीथ आउट। गॉट इट? चलो मुद्रा बनाइए, सारी फिंगर को ओवरलैप करिए, ठीक है। फिर फर्स्ट फिंगर और दोनों फर्स्ट फिंगर को ओवरलैप करें और एक दूसरे के थंब से लॉक करें। चलो मेरे साथ करें। मुद्रा बनाना है, सारी फिंगर को ओवरलैप करें अंदर की तरफ, ठीक है। लॉक किया, फर्स्ट फिंगर बाहर, थंब बाहर, एक दोनों को ओवरलैप करें, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट। गॉट इट? ये जो पोस्चर अंदर बनता है, दिखता है, वो थायराइड ग्लैंड बनेगा, ये वाला फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर। अगर हम ओवर स्ट्रेच करेंगे तो आपको थायराइड ग्लैंड दिखेगी, ठीक है। गॉट इट? चलो दोबारा करें, लॉक करें, दोनों फिंगर बाहर है, ओवरलैप करें, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट। नाउ कंप्लीटली स्ट्रेच कर दो, ठीक है। ये मुद्रा दिख रही है आपको? इट्स जस्ट लाइक अ थायराइड ग्लैंड। यस, ऑन योर थाई, चेस्ट, थ्रोट, आप कहीं पे भी लॉकेट कर सकते हो, ठीक है। आप नीचे की तरफ भी रख सकते हो, आप विसुद्धि पे रख सकते हो, सॉरी आप स्वादिष्ठान पे रख सकते हो, विसुद्धि पे रख सकते हो। नाउ वी आर गोइंग विद द ब्रेथ। टेक अ डीप ब्रीथ, हमिंग करेंगे। लाइक दैट। आपको यहाँ पे वाइब्रेशन करना है। मंत्र है हम, ठीक है। कल का था यम, नाउ मंत्र इज हम। आपको ब्रीदिंग करना है, ब्रीदिंग छोड़ते वक्त हमिंग करना है। चलो स्टार्ट द म्यूजिक। क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रीथ। सांस पर अंदर, इन, ब्रीथ आउट, इन, ब्रीथ आउट, इन, ब्रीथ आउट, इन, आउट, इन, the last time, and again. मुद्रा बंद करें, rub your palm on your face, neck, back of neck, and relief and yes you enjoy। थोड़ा डिफिकल्ट है थ्रोट को एक्टिवेट करना, थोड़ा आसना है, वो एडवांस पोज है, लेकिन सबसे ज़्यादा हेल्प करता है हमारे बॉडी को एक्टिव मोड में रखने के लिए। नाउ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इमोशन। जिसका थ्रोट इम्बैलेंस है, जिसको थायराइड है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी भी इम्बैलेंस है।
जब थायराइड डायग्नोस हुआ होगा उस वक्त आपका कंफ्यूजन, कॉम्प्लेक्स, कॉन्फ्लिक्ट सारे सिम्टम्स ज़्यादा होते होंगे। आप डिसीजन में थोड़े पुअर है, कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं, उस वक्त आपका थायराइड की एक्टिवेशन में जाता है एंड थायराइड ग्लैंड सही तरह से थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन को नहीं दे पाती, इसलिए हम बोलते हैं इसको थायराइड है। ज़्यादातर थायराइड डिजीज आर डायग्नोज विद द रॉन्ग डायरेक्शन because TSH बढ़ना is not a thyroid disease. TSH बढ़ना that means कि आपकी all over body कहीं ना कहीं फाइटिंग मोड में है, कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन और कॉन्फ्लिक्ट में है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड को संदेश देती है, एक मैसेज भेजती है कि आप थायराइड को बढ़ाओ, क्योंकि ह्यूमन को एक डिसीजन लेना है, कहीं ना कहीं उसको इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, फाइटिंग से बाहर निकलना है, और उस वक्त आपका थायराइड ज़्यादा आता है। लॉन्ग टर्म थायराइड बढ़ने के बाद वो थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन का नॉर्मल रेंज ही बढ़ जाता है, इसीलिए ज़्यादातर थायराइड मेडिसिन भी थायराइड को डिजीज को रिड्यूस नहीं कर पाती, बल्कि मेडिसिन के बाद भी थायराइड बढ़ता ही जाता है। तो थ्रोट चक्रा इज वेरी गुड एंड इम्पोर्टेंट टू एक्टिवेशन ऑन द मोड। द compression and extension helps to parathyroid and thyroid both. Humming sound is equal important to as our physical activity. आप दिन में कभी भी चाहे कुकिंग कर रहे हो, चाहे ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो जस्ट स्टार्ट टू क्लोज योर माउथ एंड ब्रीथ आउट। तो यहाँ पे वाइब्रेशन स्टार्ट होगा। 11 मिनट अगर हम कंप्लीटली करते हैं तो आपका थायराइड वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है, और थायराइड क्रिस्टल जो फॉर्म हुआ है मेडिसिन लेने के बाद, थायराइड ग्लैंड के ऊपर क्रिस्टल फॉर्म होते हैं, वो आपके थ्रोट चक्रा को ब्लॉक करके रखते हैं, तो वो क्रिस्टल जो फॉर्मेशन है उसको रिपेयर करते हैं। रिगार्डिंग इमोशन, कल का दिन था जो हमारे हार्ट के बिलोंग करता था, लव और रिलेशनशिप के लिए एक इमोशनल ट्रैक देता था। आज का जो चक्रास है वो सेल्फ के लिए है, हम हमारे लिए है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना है, सेल्फ के लिए ज़्यादा टाइम देना है। मैंने फर्स्ट डे भी बोला था कि चक्रास हीलिंग इज द मी टाइम, अपने लिए दो, ठीक है। आज के दिन के लिए किसी और का अच्छा बुरा कुछ नहीं सोचना, अपना की क्या इच्छा है, मतलब हमें क्या पसंद है, हमें क्या चीज़ें करना है, हमारी हॉबीज़ क्या है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे डिसीजन लेना है, तो दिस इज माय डिसीजन, डोंट डू अनदर डिसीजन ऑन होल्डर, ठीक है। तो अपने आप के लिए एक कॉन्फिडेंस दे। जो भी इमोशन है वो चक्रास को डायरेक्टली इफेक्ट करता है, बिकॉज चक्रास इज वेरी स्पिरिचुअली एंड डीपर लेवल। चक्रास की न तो सोनोग्राफी होगी, न तो रेडियोलॉजी होगी, न तो आपका कोई ब्लड रिपोर्ट बताएगा कि आपका चक्रा कहाँ पे इम्बैलेंस है, इसीलिए चक्रा डायरेक्ट इमोशन के साथ कनेक्टेड है। And that's why the disease is directly reflect with your emotion, ठीक है। जहाँ पे जो ब्लॉकिंग होगा उस ऑर्गन पे डिजीज होगा। हम बोलते हैं ना कि पूरा ह्यूमन बॉडी था, इतनी सारी सिस्टम है, टोटल 19 सिस्टम है, 260 हमारे बॉन्स है, मोर देन 2 ट्रिलियन हमारी वेसल्स है, और 70 ट्रिलियन से भी ज़्यादा सेल है। तो एक ही ऑर्गन पे डिजीज क्यों आया, क्यों थायराइड डिस्टर्ब हुआ, क्यों डायबिटीज आया, क्यों कोलेस्ट्रोल आया, हम तो एक ही इंसान है, तो एक ही ऑर्गन डैमेज क्यों हुआ, तो यहाँ पे हमारा इमोशन ट्रैक है, इसको द न्यूरो ट्रांसमीटर सिस्टम इन अवर बॉडी, वो ब्लॉक हो जाता है, और वहीं जहाँ पे ब्लॉक है वहाँ पे सिस्टम क्रिएट करता है, वहाँ पे डिजीज क्रिएट करता है। तो आज का दिन मी टाइम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना है, किसी के डिसीजन के ऊपर नेटिंग नहीं रहना, अपने आप पे ज्यादा एक्टिवेशन रहना है, ठीक है। जिन जिन लोगों को थायराइड है तो वहाँ पे थायराइड ब्लॉकिंग है, अदर चक्रा में हमें डायग्नोज करना पड़ता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, लेकिन जहाँ आपका थ्रोट डिस्टर्ब हुआ वहाँ पे इनर बॉडी और आउटर बॉडी, मतलब नीचे का पार्ट ऊपर का पार्ट, दोनों में इफेक्ट है। तो प्लीज बी कंटिन्यू विद द एक्सरसाइज टुडे, ठीक है। अगर आपको जरूरत है तो दिन में 2-3 बार हमिंग करना है, सेल्फ के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, डोंट थिंक अदर्स, ठीक है, किसी और के बारे में नहीं सोचना, अपने आप के लिए सोचना है। जो इंसान सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहता है, हम बोलते हैं ना सेल्फिश है, वो इंसान कभी थायराइड में नहीं जाता, क्योंकि वो खुद का ही सोचते हैं, और इसीलिए इमोशन लीड्स टू सो मेनी डिजीज। जैसे एंगर सप्रेस हुआ, ऑटो इम्यून आया, जैसे इमोशन और ग्रीफ सप्रेस हुआ, स्किन डैमेज हुआ, जैसे आपका वाइब्रेशन और विशेष सप्रेस हुआ, लाइफस्टाइल डिजीज हुआ, जैसे आपका कॉन्फिडेंस सप्रेस हुआ, आपका डिसीजन सप्रेस हुआ, आपको कुछ और चाहिए था और आपको कुछ और दिया जाता है, और उस वक्त आपका थायराइड सप्रेस होता है। तो आज का दिन प्लीज एक्टिव करना, क्योंकि आज हमने स्पेसिफिक एक्सरसाइज किया है, हम स्पेसिफिक फूड लेने वाले हैं, हम स्पेसिफिक ओरा पे जाने वाले हैं। तो आज अगर हम थायराइड को एक्टिवेट करेंगे तो माइट बी वी हैव ए चांस टू रिड्यूस द क्रिस्टल फ्रॉम योर थायराइड। ओके, चलो, आई होप यू अंडरस्टैंड।
एंड आपको मजा आया होगा। आज का जो डाइट है वो ब्लू डाइट है, स्काई ब्लू कलर है, लेकिन इतना फूड अवेलेबल नहीं रहता स्काई ब्लू का। तो स्काई ब्लू का कॉम्बिनेशन क्या रहता है, ग्रीन और रेड को मिक्स करते हैं तो वो स्काई ब्लू कलर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और दोनों फूड है जो थ्रोट को बैलेंस करता है। वैसे थ्रोट है डायरेक्टली रूट से भी कनेक्टेड है, इसीलिए थायराइड पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन आता है। और थ्रोट है वो डायरेक्टली ग्रीन से भी कनेक्टेड है, इसीलिए मसल्स में नी में पेन आता है थायराइड पेशेंट को। तो ग्रीन और रेड फूड का कॉम्बिनेशन करके आप फूड ले सकते हैं, ठीक है। चलो, नाउ यू आर ओपन, एनीबॉडी हैव अ क्वेश्चन यू कैन आस्क। आपको फॉलोअप शेयर करना है, ठीक है। विदाउट योर फॉलोअप